हालतों में, और अब सरकार उसको किस तरह से फाइट करेगी? थैंक यू मैम। हाँ, लिक्विडेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, मगर मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सेक्रेटरी उसमें थोड़ा नाउ दी क्योंकि वाइंडिंग अप की अब जो वाइंडिंग अप का ऑर्डर दिया गया था एनसीएलटी द्वारा, वो उसके बाद उसको चैलेंज एनसीएलटी में हुआ और 19 जनवरी को ही एनसीएलटी ने प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट कर दिया था। 25 मई को वाइंडिंग अप ऑर्डर एनसीएलटी ने दिया था और उसके बाद वो चैलेंज हुआ तो एनसीएलटी में ये अपील भी डिसमिस हो गई थी 8 सितंबर को, और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हैज़ अपहेल्ड द वाइंडिंग अप ऑर्डर एंड नाउ द वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग्स विल स्टार्ट। द लिक्विडेटर इज ऑलरेडी जो है अभी अपॉइंट हो चुका है ऑलरेडी, और इसके बाद में जो भी कानूनी प्रक्रिया है, जो प्रोसीजर है उसका वाइंडिंग अप का, उसके अकॉर्डिंग ये प्रोसेस अब स्टार्ट हो जाएगा। आपका वो दूसरा प्रश्न के लिए बीआईटी आर्बिट्रेशन के तहत इंडिया जर्मनी बीआईटी का 93.3 मिलियन प्लस कॉस्ट एंड इंटरेस्ट यूएस डॉलर्स है, वो इंडिया जर्मनी बीआईटी का। इंडिया मॉरिशस बीआईटी का 111.29 मिलियन प्लस कॉस्ट एंड इंटरेस्ट, वो दूसरा है। तीसरा कमर्शियल टर्मिनेशन अवार्ड बीआईटी का तहत नहीं, वो अलग है, वो 1 बिलियन का। 56. This is Shrimi from the ET. Ma'am, just a clarity needed here that will you wait for this whole winding up process to complete to challenge arbitration award in the several foreign courts, etc., because the amount is huge. So just wanted to know whether you are waiting for that or you will simultaneously file, or contest the amount which has been filed in the arbitration court. Well, the order has come from the Supreme Court yesterday, and we have spent some time yesterday looking into the details of the order. And that is why I have come to meet you all today. But certainly we'll sooner meet up interdepartmentally, because it involves 2 or 3 departments concerned of the Government of India, and then take a call on how we want to proceed. Ma'am, one more clarity on the part that, as you rightly mentioned, and even the court mentioned that about 85% of the money has been siphoned off. So what exact action like the agencies are taking on that front? Enforcement Directorate, you said that some asset has been seized. CBI has filed prosecution complaint in 2016. What more action we will see in this matter? Well, first of all, the CBI and ED are going in there very clear by the acts which govern them. Some of the assets, which are not very many, are in the form of fixed deposit, and some properties, I think, that the ED and the CBI are looking into. I may not be able to give you the details, because today I'm looking at the company getting liquidated, and company which is getting liquidated, which was a fraud in its first place in the agreement. All that has got established. We are looking at that side of it today, but sooner, post this order of the Supreme Court, I will be holding a meeting with all those departments and seeing how, and also the law enforcement agencies, to see how best we can proceed. 174. One follow-up question on the implication on international courts. Do international courts and arbitration tribunals accept, the judgment of a domestic court as validation of a case of fraud made against the other party as sufficient ground for not fulfilling the obligations of the arbitration award? First of all, it's the Supreme Court of India whose order that we are taking up and presenting before those arbitration. Second, that is where I wish Government of India, even as it cancelled the order in 2011, understood the gravity of the fraud that had taken place, and also understood the gravity of the cancellation and its fallout and its implication, and built up the case from then.
in a tight manner, putting up the right arguments of national security and of also the fraud that has been perpetrated on an entire prerogative of Government of India. There is one commercial wing of a department giving away the rights. These are things with which initially, even from 2011, the case had to be built up, which Prime Minister Modi, after coming in 2014, understanding the gravity, made all the departments work together so that this fraud is rightly placed, and it is only till yesterday that we could come up with it. So we will take all these facts before the court, because no country which respects rule of law will ignore these facts. Okay, 107. मैम तरुण शर्मा फ्रॉम जी बिजनेस। मैम आपने सीबीआई ईडी की बात करी, लेकिन ये पूरा केस मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने बहुत अच्छे से हैंडल किया और कल आपको सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी एक बड़ा केस आपने जीता है। मैम क्या कॉर्पोरेट लॉ के अंदर भी जो ब्यूरोक्रेट्स थे या उस समय या जो पॉलिटिशियंस थे, क्या उनको इसमें स्कोप में रखा जाएगा? क्योंकि कॉर्पोरेट कंपनीज लॉ में भी कई सारे प्रोविजन है, SFIO है, क्या मैम क्या उसमें एक्सपेंशन इस केस में हम देख सकते हैं? मगर ये कंपनी का सैंक्शन के द्वारा नहीं, दो कंपनीज, एक सरकारी इन अ वे इंडिपेंडेंट कंपनी बट सरकार के द्वारा कमर्शियल कंपनी, और दूसरा एक प्राइवेट कंपनी के आपस में जो एग्रीमेंट साइन हुआ उसके ऊपर है। सो उन सबको अध्ययन करके ही इतने दूर केस ले आया गया है। हम इसको भी शामिल करेंगे इस सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट को भी। If there are no further questions, with your permission, ma'am. Oh, sorry, you come back again. Okay, sir. Please go. मैम एक सवाल बार बार ये उठता है कि जब सरकार को ये पता चला कि यूपीए सरकार के दौरान इतने बड़े स्तर पर जो एस बैंड जो कि रक्षा मंत्रालय द्वारा इस्तेमाल किया जाता है उसको निजी कंपनी को बेचा गया, कौड़ियों के दाम बेचा गया, और इतने सीरियस फ्रॉड प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के लेवल तक आपने मेंशन किया, कैबिनेट नोट का जिक्र किया, किस तरह से कैबिनेट नोट में इस बात का जिक्र नहीं किया, वो भी अपने आप में एक फ्रॉड था। इतनी सारी जानकारियों के बावजूद भी सब लोग ये समझना चाह रहे हैं कि इतने सालों में कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया, किसी को जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराया गया, और अब क्या इसके आगे जनता का विश्वास सिस्टम पे, लॉ पे करने के लिए क्या कदम उठाएगी सरकार? क्योंकि कांग्रेस को बार बार आरोप करना कि आपको बोलने का हक नहीं है तो एक बात है, लेकिन फिर से इतने सालों के बाद मौजूदा सरकार ने क्या किया इसके खिलाफ? नहीं, इतने दूर तक हर लेवल पर NCLT, NCLAT और सुप्रीम कोर्ट और हर एक में दोनों पक्ष का सुनना, फिर 2-3 वायदा के बाद दोबारा कोर्ट मैटर को कंटिन्यू करना और ऑर्डर ले आना, ये सब इस सरकार के आने के बाद शुरू हुआ। और बार बार आरोप लगाना, आरोप हम नहीं लगा रहे हैं भैया, आप उनके स्तर पर ही सोचिए। 2005 में जो गलत समझौता हुआ दो पार्टीज के बीच में, उसको कैंसिल करने के लिए 6 साल बीता गया, और उसके बाद उस सरकार गलत जो कैंसिलेशन के कारण बना और कैंसिल भी हुआ, उसके बाद न्याय दिलाने के लिए और पैसा, जनता के पैसा को बचाने के लिए उनके तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की, कम से कम आर्बिट्रेटर को अपॉइंट नहीं की। गलत इतने सारे एक के बाद और उनके द्वारा इतना गलतियां हुई, और हमारे सरकार आने के बाद ही हर लेवल पर एक्शन हो रही है। मोदी जी के आने के बाद ही हर डिपार्टमेंट को बिठा करके इसका गहराई समझ करके एक्शन लेने के लिए हमारी तरफ से कोशिश हो रही है, और इतने सारे केसेस को हम बचाने के लिए इतनी दूर तक ले आने वाला हमारी सरकार है। उनके सरकार के द्वारा कुछ भी नहीं हुआ, गलती हुआ उसका कैंसिल करने का मजबूर हुआ, मगर उसके बाद न्याय दिलाने के लिए कुछ नहीं हुआ, क्योंकि पैसा जाने दो, किसका पैसा है, सरकार देगी। ऐसे अप्रोच कांग्रेस का है, इसीलिए बार बार आरोप में तक नहीं जाऊंगी। आई विल नेवर बिकम टायर्ड of telling the truth before Congress. What do they say repeatedly? Who can speak truth to power?
It's one thing to go on using cliched phrases. मगर एक बार क्या राहुल गांधी जी इसके विषय में कांग्रेस में चर्चा की है? इतनी बड़ा घोटाला, देश का इतना बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी के सरकार के समय हुआ, प्रश्न पूछा या उस ऑर्डर को कैंसिल करके फाड़ करके फेंका? कुछ किया? कुछ भी नहीं किया। मोदी सरकार आने के बाद ही इतना प्रयत्न चल रही है जिसके वजह से आज सुप्रीम कोर्ट में हमें सफलता मिली। सो कांग्रेस को बार बार कहने में संकोच नहीं करिए भैया, बार बार आप भी पूछना चाहिए कि मास्टर ऑफ करप्शन, इस हद का करप्शन कोई और कर नहीं सकते हैं भैया। मैं पूछना चाहती हूं आप सबसे, 2014 से एक कहीं सुनने में आया करप्शन मोदी सरकार में? मगर ये है लेवल ऑफ करप्शन ऑफ यूपीए, और सरकार 10 साल से इसके इतना मेहनत करके कोर्ट में जीत कर आने के लिए इतना कदम उठा रही है। दैट्स द लेवल ऑफ फ्रॉड दैट कांग्रेस पार्टी perpetrates and accommodates. We have another question at 61. मैम, मैं शैलेश यादव हूँ, ANI न्यूज़ एजेंसी से। मैम, जैसे कि आपने बोला कि ये पूरा स्कैम है, फ्रॉड है, तो इस फ्रॉड के पीछे कौन है? कांग्रेस है या कोई पॉलिटिशियन है या PMO है या कोई मिनिस्टर है? किसी एक दो का नाम अगर आप बता सके तो। कांग्रेस है तो मैं बार बार बोल रही हूं, आपको शायद इतना स्पष्ट से सुन नहीं दे रही। कांग्रेस है, इट इज अ फ्रॉड बाय कांग्रेस, ऑफ कांग्रेस एंड फॉर कांग्रेस। आप ऐसे समझ लीजिए, इस स्तर का फ्रॉड नहीं तो नहीं हो पाएगा। इस स्तर का फ्रॉड इज बिकॉज इट्स फॉर कांग्रेस, बाय कांग्रेस, ऑफ कांग्रेस। और जब तक ऐसे उनका विषय बाहर आते जाएगा, हम जरूर बोलेंगे उनके लेवल ऑफ करप्शन के ऊपर, और इतना शेमलेस करप्शन है। Thank you, ma'am. With your permission, Thank we'll you. close the Thank you. press conference now. Thank you, friends.